the recent amendment in the IT rules, the information technology rules, the recent amendment of 2026, which deals with the mandatory labeling of the photorealistic AI content. कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी कंटेंट आता है तो उस पे आपको मैंडेटरी लेबलिंग करनी होगी। इवन चैट जीपीटी, जेमिनाई अगर कोई भी कंटेंट जनरेट करता है तो उसकी मैंडेटरी लेबलिंग करनी होगी। दैट इज उस पे क्लियरली लिखा होना चाहिए कि वो एआई जनरेटेड है। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, द नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी इंस्टीट्यूशन. We are continuing with our high yield UPSC series where we discuss some of the most important questions and the topics that have the maximum probability of being asked in your UPSC prelims and mains examination. And since the exam is just a few months away, these topics become extremely important for you. Apart from this, we also provide these daily current affairs PDFs and mains current affairs monthly PDFs that have been well researched by some of the best people, and it is available completely for free on our Telegram channel, the link to which is in the description below. So the topic for today is a very recent topic in news, which is very important from GS3, that is science and tech, as well as the security perspective, the internal security that we talk about. Both are very important when we talk about this topic. So the topic is about the recent amendment in the IT rules, the information technology rules, the recent amendment of 2026, which deals with the mandatory labeling of the photorealistic AI content. So what has happened that the government has introduced a new rule which says that any social media platform must label an AI generated content. That is, for example, if this is an image which is generated by AI, then it must be written in the background that it is AI generated. And this has been done so that people have a clarity that a particular content has been generated by AI and a particular content is real or ऑथेंटिक. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के लिए ये गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी कंटेंट आता है तो उस पे आपको मैंडेटरी लेबलिंग करनी होगी। इवन चैट जीपीटी, जेमिनाई अगर कोई भी कंटेंट जनरेट करता है तो उसकी मैंडेटरी लेबलिंग करनी होगी। दैट इज उस पे क्लियरली लिखा होना चाहिए कि वो एआई जनरेटेड है। और दूसरी चीज जो दूसरा पार्ट है इस रूल्स का जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज दैट इफ देर इज अ सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट विच इज प्रॉब्लमैटिक, it is a deep fake that creates a communal problem, or it is a deep fake related to a pornographic video or anything, then the social media platform must take it down within 2 to 3 hours. The timeline depends upon the sensitivity of the content. So now let us understand first what is deep fake, what are these rules, and how these will impact the Indian society. So the if we talk about deep fake, so a deep fake is a digitally manipulated content that imitates a real person's face or voice using AI algorithms. किसी भी रियल इंसान का डेटा जो है, वीडियो जो है, फोटो जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, उनकी वॉइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और इससे इसके कुछ पॉजिटिव यूजेस भी हैं जैसे फिल्मों में, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, लेकिन इसको रेपुटेशनल हार्म के लिए यूज किया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए, स्कैम्स के लिए, इलेक्टोरल मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड इवन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एज अ थ्रेट भी इसको यूज किया जा सकता है. एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अमेंड द आईटी एक्ट ऑफ 2000 एंड द रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड which mandate clear labeling of photorealistic AI generated content and stricter compliance timelines for accountability for the social media platforms. So now first let us understand the background of the IT Act 2000. So this IT Act of 2000 has a particular section, that is section 79, which provides a safe harbor to the social media platforms. That is, the social media platforms are not
automatically liable for user generated content. What does this mean? दैट अगर कोई यूजर जो है वो कुछ कंटेंट जनरेट कर रहा है एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक, तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा अगर वो ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करते हैं तो। और इसी का मतलब हुआ सेफ हार्बर, दैट इज द सेफ हार्बर प्रोटेक्ट्स द प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज पब्लिशर्स ऑफ यूजर कंटेंट, क्योंकि यूजर ने उसको पब्लिश किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नहीं। बट ये जो सेफ हार्बर का कंडीशन है, ये जो सेफ हार्बर का प्रिविलेज जो है वो तभी मिलेगा जब आप कुछ ड्यू डिलिजेंस के गाइडलाइंस कंडीशंस जो है वो कंप्लाई करेंगे तब। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि क्योंकि एआई को रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है, तो ये जो रीसेंट अमेंडमेंट है वो गवर्नमेंट ने इसी के लिए यहाँ पर प्रोड्यूस जो लाया है कि एनी एआई जनरेटेड कंटेंट और सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड कंटेंट दैट अपीयर्स टू बी रियलिस्टिक, लेकिन है वो फेक, जो कि दिख बहुत रियल रहा है लेकिन है वो फेक, उसका मैंडेटरी लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अगर हम बात करें कि नॉर्मल कुछ ऑल्टरेशन अगर आपने किया है एआई को यूज करके किसी फोटो को एनहांस करने का, किसी वीडियो को एनहांस करने का, ऑडियो को एनहांस करने का, तो माइनर ऑटोमेटेड करेक्शंस जो है वो इसका पार्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन किया गया है, किसी इंसान, किसी नेचुरल पर्सन, किसी रियल वर्ल्ड इवेंट को दिखाया गया है, तो उसमें आपको उसकी मैंडेटरी लेबलिंग जो है वो करनी होगी। और कोर्ट और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तो 3 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को रिमूव करना होगा। और अगर वो सेंसिटिव कंटेंट है जैसे डीप फेक न्यूडिटी है तो 2 घंटे का ही टाइमलाइन यहाँ पर दिया गया है। एल्स आपका जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के अंडर जो सेफ हार्बर आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपसे छीन लिया जाएगा। साथ ही साथ platforms must seek disclosure from users regarding whether content is AI generated, मतलब कंटेंट अपलोड करने से पहले आपको ये यस या नो में रिप्लाई करना होगा, वहां पे रिस्पॉन्स देना होगा कि क्या आपका कंटेंट जो है वो AI जनरेटेड है या ऑथेंटिक कंटेंट है। Now, why this was necessary? Because obviously it is directly related to right to dignity and right to privacy. जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, right to life and personal liberty, also includes the right to dignity, right to live with dignity, and the right to privacy, which in 2017 was regarded as a fundamental right by the Supreme Court under the K.S. Puttaswamy judgment. The deep fakes also have a severe psychological damage. Anybody who has dealt with this problem knows that the amount of reputational damage it causes, the amount of social damage that it causes, and the mental stress of deep fakes. This also has an aim to protect electoral integrity, because suppose कि कोई ऐसा वीडियो है जो किसी पॉलिटिशियन, आपके किसी नेता के बारे में कुछ गलत चीजें जो है वो बोल रहा है या उनके द्वारा कुछ गलत चीजें बोलते हुए दिखाया जा रहा है, हेट स्पीच प्रमोट करते हुए दिखाया जा रहा है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को डिस्टॉर्ट कर सकता है, वोटर के परसेप्शन को चेंज कर सकता है और पब्लिक के ओपिनियन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू कम्युनल tensions, it can spread misinformation campaigns, psychological warfare, and even cause panic among crisis. For example, there is a crisis going on between India and Pakistan, और उस समय कोई हमारे प्रधानमंत्री का वीडियो जनरेट करके डाल दे कि इंडिया जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट में हार चुकी है और पाकिस्तान हम पर अटैक करने वाला है या चाइना हम पर अटैक करने वाला है, तो अमाउंट ऑफ डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज, पैनिक दैट इट विल क्रिएट इन द सोसाइटी विल बी कैटास्ट्रोफिक। इसीलिए इसको हमको यहाँ पर लेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमने देखा है इन द रिसेंट टाइम्स वॉइस क्लोनिंग स्कैम्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नियर एंड डियर वंस को इम्पर्सोनेट करते हैं, आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये रेगुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये जो रेगुलेशंस हैं दैट मूव टुवर्ड्स स्ट्रिक्टर प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि पहले हम सिर्फ और सिर्फ यूजर अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, अब हम प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली देयर आर टेक्नोलॉजिकल डिटेक्शन डिफिकल्टीज, क्योंकि हर एक चीज को डिटेक्ट कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। जो डिटेक्शन टूल्स भी हैं वो कम्प्लीटली रिलायबल नहीं है। जो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है, और साथ ही साथ ये जो 2 से 3 घंटे का टाइमलाइन है उसके लिए आपको
24/7 मॉनिटरिंग जो है वो करनी पड़ेगी. But obviously, these rules come with their own set of criticism. That is, first of all, it is against the freedom of speech. The Article 19, Clause 1, Subclause A allows freedom of expression, and the content generated on social media is a part of freedom of expression. So, satire videos, parody videos, artistic content, they can be unintentionally removed on the grounds that they are a threat to privacy. So the restrictions that are to be imposed under Article 19 Clause 2 must be reasonable, and these restrictions that have been placed are reasonable or not, that is a big question over here, because they might risk arbitrary censorship by the government. And of course, there is a threat of precautionary censorship, that अपना सेफ हार्बर का कंडीशन जो है उसको बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रिकॉशनरी सेंसरशिप कर देंगी, कि पहले ही वीडियोस को, फोटोज को टेक डाउन कर देंगी, ताकि उन पर लायबिलिटी जो है वो ना आए. एंड दिस मे ऑल्सो डिस्टर्ब द इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस जो है वो यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आएगा. सो वी मस्ट बैलेंस रेगुलेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स. जो हमारा प्राइवेसी है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इन सब को हमको बैलेंस करने की जरूरत है. तो वे फॉरवर्ड है हमारा कि हमको टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, वाटर मार्किंग स्टैंडर्ड्स, कोलैबोरेशन, इन सब को हमको करना चाहिए. हमको इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स की जरूरत है. अगर कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई कंटेंट को टेक डाउन किया गया है तो उसके लिए अपीलेट मैकेनिज्म होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, और जितने भी गाइडलाइंस होने चाहिए वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. देयर मस्ट बी डिजिटल लिटरेसी. पीपल शुड बी अवेयर कि डीप फेक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. एजुकेशन में, एजुकेशनल करिकुलम में हमको डिजिटल एथिक्स इंक्लूड करने की जरूरत है. एंड लास्टली, वी मस्ट अलाइन एआई रेगुलेशन विथ आवर डीपीडीपी एक्ट. डीपीडीपी फ्रेमवर्क जो है हमारा, उससे हमको रेगुलेट करना होगा. एंड वी मस्ट इंश्योर कि हमारा जो प्राइवेसी है, कॉन्सेंट है, कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड जितने भी गवर्नेंस लॉज हैं उनमें कोहेरेंस हो. वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में एग्जिस्ट करें. क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एम जो है वो है इंडिविजुअल्स को, उनकी प्राइवेसी को, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना. बट साथ ही साथ हमको जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, उसको भी हम टेक डाउन नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ दीज रेगुलेशंस विल डिपेंड अपॉन balanced enforcement, institutional capacity, technological readiness, as well as strong safeguards for freedom of expression. ताकि ये जो rules है ये unpredictable censorship, या आप कह सकते हैं कि unrequired censorship जो है वो यहाँ पर ना कर सके. So that's it for this video. If you want more such content, please subscribe to the channel and keep watching Prep Alpine. Thank you.